রামদাসপুর মুজিন্দাবাদ। আপনারা তাড়াতাড়ি এই মন্দির প্রাঙ্গণে আসেন। রোকেন ভাই, গাড়ি রোক 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 ভাই। দাদারা দেখো সাইড দো, যত গ্রামবাসীরা আছেন। তো আজকে মায়েরা, মাসিরা, দিদিরা, কাকিরা, মনুরা, দাদুরা, কাকুরা সবাইকে জোহার। বড়গুলাকে জোহার, ছোটগুলাকে আশীর্বাদ। তো আজকে আমরা আপনার গ্রামে এসেছে, এটার কারণ কি আজ ঘাটশিলা বিধানসভা চুনাবের সময় মানে একটা মজবুত লিডার চুনবার সময়। আজকে আপনি দেখতে পারি, আজকে আপনার যে গট পূজার জমিন ছিল এই কোন ডুবে প্রসাদ কবজা করছে, এই টোলের সমস্যা আছে। তো আজকে আমাদের কাছে বোল্ড লিডার নাই, আমাদের কাছে একটা মজবুত লিডার নাই। সেই জন্য আমরা জনতার যে সমস্যা আছে, মুদ্দা আছে, ওই মুদ্দা গিলা গণ হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য আজকে আমরা নতুন ভাবের ছেলা, আমরা নতুন লড়াকু ছেলা সবাই বটে। আমরা যদি জিতে নিয়ে আসবো তো নিশ্চয়ই যে মানুষগুলা গলত কাজ করছে, যে মনমানি করছে, তাদের গলত কাজ আর মনমানি দুটা বন্ধ করতে হবে। আজকে আমাদের রাজ্য ঝাড়খণ্ড রাজ্য মানে কি আন্দোলনের রাজ্য, ঝাড়খণ্ড রাজ্য মানে সংঘর্ষের রাজ্য। লেকিন আজকে আমাদের ভাইরা, আমাদের বোনরা, তাদের কি স্থিতি আছে? পড়ালেখা করে নিয়ে ঘরে আছে। আর যে মানুষগুলা কলকাতা, পটনার ওইখানে আমাদের টাটা, জমশেদপুর, আমাদের ঘাটশিলায় কাজ করছে, কেন না আমাদের গভর্নমেন্ট, আমাদের সরকার ওদের ভিজনে নাই, ওদের সোচে নাই কি আমাকে কি কাজ করতে হবে। ওরা একটাই জানে কি 2,500 টাকা আমরা মহিনায় দেয়, মাসে মাসে 2,500 টাকা দেয়, সেটাই সঞ্জীবনী বটে। তো সেই জন্য আজকে আমরা একটা নতুন পলিটিক্স করবার জন্য এসেছে। নতুন পলিটিক্স মানে জনতা জনার্দনের পলিটিক্স, আম জনমানসের পলিটিক্স, শিক্ষা স্বাস্থ্য সুবিধার পলিটিক্স, ঝাড়খণ্ডীয়তের পলিটিক্স। তো সেই জন্য আজকে আপনাও জানে, সবাই জানে যে দুটা ক্যান্ডিডেট আছে, একটা সোমেশ সোরেন আর একটা বাবুলাল সোরেন। এই দুটা ক্যান্ডিডেট কে বটে? একটা পূর্ব মুখ্যমন্ত্রীর বেটা আর একটা পূর্ব মন্ত্রীর ছেলে বটে। একটা পূর্ব মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে, একটা পূর্ব মন্ত্রীর ছেলে বটে। তো ওদের ভিজন নাই, ওর দরকারও নাই কি ভাই আমরা এই আমাদের জনতা, আমাদের গ্রামীণ, আমাদের গ্রামের লোক, আমাদের মানুষ, আমাদের ঝাড়খণ্ডের লোক, ওদের কেন চিন্তা নাই। সেই জন্য আজকে আমাদের স্থিতি পরিস্থিতি আছে। তো আজকে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের স্থিতি আপনি সবাই জানেন। আজকে এখানে মুখ্যমন্ত্রী বলে কি আমরা 2,500 টাকা মাসে দেয়। 2,500 জন্য আমাদের ঝাড়খণ্ডের রাজ্য নির্মাণ, আমাদের পূর্বজ এই রাজ্যের নির্মাণ 2,500 টাকার জন্য নাই করেছি। এই রাজ্যের নির্মাণ আমরা এই জন্য করেছি কি আমাদের ছেলে চাকরি পাবে কেন, আমাদের ছেলের পড়ালেখা হবে কেন, আমাদের ছেলের রোজগারের রাস্তা। লেকিন আজকে কি হচ্ছে, আজকে এই গভর্নমেন্টের জবাব দেই নাই। আজকে সবাই সিস্টেমে দুটা পরিবার, 4টা পরিবারের কাছে গোটা সিস্টেম আছে। যার কাছে পাওয়ার, তার কাছে পলিটিক্স, তার কাছে পয়সা আছে। আর আমজন মানুষের সুবিধা আজকে গণ, আজকে মন চুপচাপ আছে আমাদের। সেই জন্য আজ আপনিও জানে আমি একটা এমএলএ, কিন্তু যখন আমরা বিধানসভার ডিসকাশন হয়, যখন বিধানসভার সেশন চলে, আমি যখন বিধানসভার ভিতরে প্রশ্ন করে, যখন আমি গল্প করে, যখন আমি মুদ্দার বাদ করে, তখন আপনি দেখতে পারি কি একটা না দুটা মন্ত্রী দাঁড়ায় নিয়ে আমার সঙ্গে ডিসকাশন করে।
কাপে মন্ত্রীরা কি এই নতুন ছেলা নতুন পলিটিক্স ছেলার এই নতুন পলিটিক্স করতে জন্য এসেছে। তো সেই জন্য আজ ইউথের টাইম, নজওয়ানের সময় বটে। নজওয়ানের হাতে যদি আপনার পলিটিক্যাল পাওয়ার দিতে যায় তো নিশ্চয়ই বদলাও হবে। আর বিশেষ এইটা পলিটিক্যাল কান্ট্রি, এইটা ভোটের কান্ট্রি, আমাদের ভোটে इम्पोर्टेंट जिनिस। आज के हिंदी में बोलने बोल रहा है सबसे। तो आज आप सभी जानते हैं कि आज वोट का देश है। आज हमारे राज्य को हमारे लोगों ने लिया कैसे है? अपना लहू देकर लिया है। आज निर्मलदा का रक्त नहीं बहता, आप सभी जानते हैं। कोल्हान की धरती का कण कण, पूरे झारखंड का कण कण जानता है कि निर्मल का लहू बहा तब झारखंड राज्य मिला। तो किस लिए? क्या हम केवल लहू बहाने के लिए है कि जब इस राज्य को जरूरत पड़ेगी हम अपना खून बहा देंगे, जब इस राज्य को जरूरत पड़ेगी हम अपना गर्दन कटा देंगे? और राज कौन करेंगे? मुख्यमंत्री और उनका परिवार, चौंकोई चचा और वादर परिवार। मैंने जब जरूरत पड़ेगी तो झारखंड का जनमानस गर्दन कटाएगा और 2-3 परिवार अगर राज करेंगे तो चिंता का विषय है। आज कहते हैं कि हमारा खजाना खाली है, हेमंत सोरेन जी कहते हैं हमारा खजाना खाली है। मैं गुरु जी का सम्मान करता हूं, पूरा राज्य उनका सम्मान करता है। और शायद अगर गुरु जी अगर स्वर्ग तक ये बात पहुंच गई होगी तो वो भी हेमंत से सवाल पूछेंगे कि जिस गुरु जी ने हमेशा जनमानस के लिए संघर्ष किया, उनके भोज के कार्यक्रम में 5000 खसी काट दिया मुख्यमंत्री ने। पता है वाली টাকাটা এইখানে টাকা আছে, যদি ঝাড়খंडে টাকা নাই तो কোথাও টাকাই নাই। हमारे राज्य में अगर पैसा नहीं है, खजाना नहीं है तो कहां मिलेगा? क्या नहीं, हमारे राज्य में 75 से 80 प्रकार का मिनरल्स है। कोयला है, यूरेनियम है, लोहा है, कॉपर है, बॉक्साइट है, अभ्रक है। ऐसे 75 से 80 प्रकार के मिनरल हमारे राज्य में है। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है ये किसी से नहीं छुपा है। इसलिए आज सरकार को सबक देना होगा। हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि एक सीट से कुछ होगा नहीं, लेकिन एक सीट से उनमें डर होगा। ये जनता का देश है, आप जानते हैं। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये जनता का देश है। और जनता के देश में सबको जनता से डरना ही चाहिए। चाहे वो IAS IPS रहे, चाहे वो मिनिस्टर रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे, जनता से अगर वो गलत काम कर रहा है तो जनता से डरना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। आपने देखा हमारे ही पड़ोसी देश नेपाल में क्या हुआ? थर थर कांपे, मंत्री की नहीं कांपे, प्रधानमंत्री कांपे। मारने जो लगा नेपाल का नौजवान सब सड़क में आके। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, श्रीलंका में राष्ट्रपति को भागना पड़ा। लोकतांत्रिक देश मतलब जनता का डर सब में दिखना चाहिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे राज्य का दुर्भाग्य है कि जनता का डर नेताओं में दिखता नहीं है। उनके तीखे सवालों से उन्हें घबराना चाहिए कि जब हम गांव में जाएंगे दोबारा वोट मांगने के लिए जनता क्या सवाल पूछेगी। लेकिन आज हमारी जनता भी कहीं ना कहीं सोई है। इसलिए आज नेता का बेटा को नेता चुन रही है। तो फिर काहे वोट? हमने इतिहास में पढ़ा है कि बाबर थे, बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर था, अकबर का बेटा शाहजहां था। और ऐसा ऐसा करते करते जहांगीर औरंगजेब होते हुए बहादुर शाह जफर तक आ गया। हमने ये भी पढ़ा है कि श्रीगुप्त था, फिर उसका नाती की पोता चंद्रगुप्त आया, फिर समुद्रगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया, फिर स्कंदगुप्त आया। ऐसे उसका परिवार। यानी उस समय राजा के हाथ में निर्णय था कि राजा कौन बनेगा। लेकिन आज हमारे हाथ में निर्णय है कि हम MLA किसको बनाएंगे। हम मानते हैं कि भाई हम बाबर का बेटा हुमायूं राजा बना, बादशाह बना, हम रोक नहीं सकते थे। चंद्रगुप्त का बेटा राजा बना, ये हम रोक नहीं सकते थे। वो काबिल था या नहीं था, वो हमारे बस में नहीं था। लेकिन ये लोकतांत्रिक भारत है, ये हमारे बस में है कि MLA कौन बनेगा, MP कौन बनेगा, ये हमारे बस में है। और आज बदलाव करना होगा। आज इस राज्य को गरीब बनाया जा रहा है, इस राज्य के खजानों को लूटा जा रहा है, इस राज्य के संसाधन को लूटा जा रहा है। आज पुलिस का मतलब क्या था आप भी जानते हैं। पुलिस का चलो लोग सोचता है कि चलो पुलिस रात को कम से कम पहरादारी करेगा, चोरी नहीं होगा, डकैती नहीं होगा, जनता को कोई परेशान नहीं करेगा। आप सड़क में चले जाइए, आज पुलिस का काम रह गया है बालू गाड़ी से तस्करी लेना। आज बालू गाड़ी से, कोयला गाड़ी से जो अवैध काम हो रहा है उससे चंदा लेना, उससे काम बचा। क्यों? तो सरकार हमारी कमजोर है, हमारी सरकार की मनोवृत्ति नहीं है, हमारी सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। आप चले यही घर से लगी सड़क में चले जाइए,
ये जो आपके घाट जिला मूसामंडी होके जा रहा है, देखिएगा रात को बड़ा बड़ा बालू गाड़ी निकलता है और अब पुलिस के आदमी लोग टॉर्च दिखा के पैसा ले बोले जाओ रास्ता खाली है। ये काम इनका बचा है, क्योंकि पुराना पॉलिटिक्स चल रहा है, नया पॉलिटिक्स की दरकार है। नए लड़कों को राजनीति में आने की जरूरत है, नई बहनों को राजनीति में आने की जरूरत है। आज कहते हैं झारखंड में सब कुछ है, जानबूझकर झारखंड को गरीब बनाया जा रहा है। आज शिक्षा, आज हमारी शिक्षा की व्यवस्था क्या है आप सभी जानते हैं। आज हमारे जो भाई बहन है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनका स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, उनका छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, उनका स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। और स्वास्थ्य मेडिकल का क्या स्थिति है आप देखा आपने चाईबासा में 5 को छोटा छोटा बच्चों को जरूरत था दूसरा खून का, चढ़ा दिया HIV वाला खून। पढ़े होंगे आप लोग पेपर में, उसको जरूरत था दूसरा खून का और उसको चढ़ा दिया HIV वाला माना खून। ये है हमारा हेल्थ फैसिलिटी राज्य का। इसलिए आज जनता को उत्तर देना होगा कि भाई ये जनता का देश है, जनता से आपको डरना होगा। कोई रहे, वीडियो रहे, सीओ रहे, दरोगा रहे, वीडियो अपना, आप कभी भी किसी वीडियो के पास जाएंगे तो उसका कमरा में कुछ लिखा होता है, क्या लिखा होता है? JAS, उसके नाम के नीचे JAS लिखा होता है, यानी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सर्विस माने क्या होता है? सेवा। सेवा करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? सेवक कहते हैं। पढ़ाने वाले को टीचर कहते हैं, इलाज करने वाले को डॉक्टर कहते हैं, खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं, नाचने वाले को डांसर कहते हैं, तो सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं। मतलब वीडियो कौन है? हमारा सेवक है। सीओ कौन है? हमारा सेवक है। जनता के देश में जनता से सबको डर के रहना चाहिए, लेकिन आज जनता डरी हुई है कि हम कुछ बोलेंगे केस हो जाएगा, हम कुछ बोलेंगे ये हो जाएगा। इसलिए जनता का देश लगता ही नहीं कि जनता का देश है, खाली लगता है कि नारों में भाषण में जनता का देश है, हकीकत में लगता ही नहीं है जनता का देश है। तो ऐसे में जनता की जिम्मेदारी है इस देश को जनता का देश बनाया जाए और अपने मतदान से नए नेताओं का चयन किया जाए जो आभास कराएंगे कि जनता का देश है। आज देखिए एक धर्म कुमार महतो के आने से क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चे भी अब सवाल करने लगे हैं, लड़कियां भी सवाल करने लगी है, क्वेश्चन करने लगे हैं, सिस्टम से टकराने लगे हैं, आंख से आंख दिखाकर बात करने लगे हैं। इसलिए ये जनता का देश कैसे हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये अफसरशाही का देश नहीं है, ये नेताओं का देश नहीं है, ये जनता का देश है। जनता नेता चुनती है और जो अफसर आते हैं वो जनता की सेवा करने के लिए आते हैं। लेकिन आज हमारी सरकार क्या कर रही है? आपसे छुपा रही है। आज वो क्या कर रही है? इस राज का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? अरे हम तो आश्चर्यचकित हो गए। आपके गालूडी में मुख्यमंत्री की भाभी का रिसोर्ट में पूंजी लगा है। कहाँ की वो चुनाव लड़ती है दुमका उधर से और रिसोर्ट बनाई है गालूडी घाट जिला में, हमको पता चला। इसका मतलब हमारे राज्य की संपत्ति 2-4 लोग उसको अपना बपोती समझ लिए हैं। और अभी बिल्कुल कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। चंपई सोरेन यही ना किए। आज चंपई सोरेन जी का तनख्वाह है 2 लाख रुपया है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ कितने लोग हैं जिनका तनख्वाह 2 लाख है? आपके घर में जो आप कमाते हैं लोग, भाई लोग क्या कमाते हैं? 10,000, 20,000, 15,000, कैसी खुशी परिवार चल रहा है और चंपई जी ने 2 लाख रुपये देने वाला है। बेटा कोई बना देते क्या सोच है? आपको भी मालूम है, आप भी समझ सकते हैं उनका सोच क्या कितना करेगा। 2 लाख रुपया महीना मिल रहा है आराम से। 25 को अगर आपकी फैमिली में 20 को मेंबर है तो चलेगा। जब लोग 10,000 रुपये कमा के 5 को मेंबर पर चला रहा है तो 2 लाख रुपया तनख्वाह पहले कमा के रखे तो अभी नहीं ले रहे, अभी 2 लाख रुपया तनख्वाह है। तो ये हमारे नेताओं की सोच है। इसलिए आज नए राजनीति की आवश्यकता है, जनता को नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। और रामदास मुर्मू कौन है? आप भी जानते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, बच्चा लोगों को पढ़ाते हैं, लाइब्रेरी चलाते हैं। इसलिए मायरा मासीरा काकीरा दीदीरा আমরা যেখানে আসছে এই জন্য আসছে এবার নতুন পলিটিক্সের দরকার আছে। এটা চেঞ্জিং এর টাইম, পরিবর্তনের সময় আছে। আর আমরা এটা তো ये बात तो आपसे कहेंगे, चुनाव हारे या जीते हम आपके मुद्दों के साथ है, आपकी समस्याओं के साथ। आपके सुख में आ पाए या ना आ पाए इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपको दुख होगा, समस्या होगी, हमारे नेता आपके बीच रहेंगे। चुनाव का क्या परिणाम होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हम लोग आपके बीच से आए हैं, आपके बीच रहेंगे। आज हम विधायक बन गए हैं, लेकिन आप देखिएगा हमारा घर जाके, आज भी हमारे घर में जब बारिश होती है तो जमीन के नीचे से भी जाता है, ऊपर से तो आता ही आता है। आप तो देखिए हमारे जो दादी दीदी बोली आपकी बोले, आपको मोबाइल में देखते हैं जब भी घर जाते हैं तो हमारे घर बना, अभी विधायक बन गया है तो घर बना।
तो जब जब हम अपने बारे में सोचते हैं हमारे आंखों के सामने आपका चेहरा आता है कि हम अकेले थोड़ी हैं। हम जिस काम के लिए आए वो काम अधूरा है, वो मकसद अधूरा है, हमें वो मकसद पूरा करना है, वो काम पूरा करना है। इसलिए आज आपसे आग्रह है, अनुरोध है, इस बार अवसर दिया जाए और आप देंगे, वो विश्वास है। वोट होंगे, वोट होगा, फिर होगा, लेकिन फिलहाल अब हम लोग जाते जाते यही कहेंगे समय का अभाव है, अभी और 3-4 जगह जाना है और आचार संहिता में टाइम का परमिशन होता है। बाकी आप लोग बढ़िया से अच्छा से मिलजुल के रहिएगा और जितने छोटे भाई बहन आप लोग पढ़ाई करके दिया है मुनीरा मुनू हो ना, पढ़ा लिखा करे ना, समय भालो करे, पढ़ा लिखा करे ना, और आप लोग मिलजुल के रहिएगा, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा, भाई भाई नहीं लड़िएगा। आप लोग होती है बजाओ क्या है, हम लोग बकरी बोलते हैं। हाँ, आप लोग जजवाली लोग बहन जैसा रहिएगा। हाँ, जैसे भाई भाई लोग होता है, बहन बहन जैसा रहिएगा, जजवाली जैसे नहीं रहिएगा। ठीक है, समय के